start. प्रोबेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी कुछ ना कुछ पता होगा, बहुत ज़्यादा पता होगा. आज हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे इज डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी प्लस काउंटिंग प्रॉब्लम्स. काउंटिंग के अंदर हमने कुछ सीखा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, द वे ऑफ काउंटिंग. अगर किसी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता है प्लस द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पता है, चीजें इजीली हो जाएगी. ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? Possibilities. And how you find out? Given any event, number of element in the event divided by total number of element in the sample space, right? So वही definition लगेगा, सिर्फ हमें counting के बारे में सीखना है. So probability of an occurrence of event. अगर suppose मेरे पास एक sample space है S, E is an event inside it. N of E is number of element inside E, N of S is number of element inside sample space. Then the definition of probability goes like this, right? Probability of E is same as N of E divided by N of S. Once we know the definition, there are some standard result about probability. Probability जो है, it is always greater than or equal to probability हर बार 1 से ज्यादा होता है? No, 1 से हर बार कम होता है. It is always greater than or equal to 0. So answer of probability always lies between 0 and 1. Right? This is one of the results that we should always make sure. उसके साथ साथ probability of a sample space is 1. What is meaning of that? कि sample space तो हर बार होने वाला, because sample space is what? Set of all possible outcome. तो उसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा. Right? So probability of sample space is 1. Probability of any event lies between 0 to 1. What is the meaning of this sign? Null, that means empty set. Probability of empty set is always equal to 0. Then what is probability of A union B? Probability of A union B. It is probability of, do you know anything about this? What is formula of N of A union B? Correct. The same formula goes for probability as well. अगर सपोज मैंने इसको N of S से डिवाइड कर दिया ना, तो आई गेट द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन. नाउ डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर ऐसा डायरेक्टली नहीं दिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करो. उन लोग क्या देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट और द अदर इवेंट, राइट? दे विल यूज द वर्ड और मींस इट इज अ यूनियन. If they use the word and, that means they are trying to talk about intersection. Right? This is the way they might use the word. Now, what is the meaning of this A raised to C? A complement यानी कि A को छोड़ के. If you know the probability of some event, the probability of complement of it is same as 1 minus the probability that you find. Most of the situation में क्या होता है ना, क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके से पूछा जाता है कि उसको सॉल्व करना लेंथी होता है, बट उसका रिमेनिंग पार्ट इजी होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैं 4 डाइस को रोल कर रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि 4 में से एटलीस्ट एक के अंदर 1 आए. मेरे पास 4 डाइस है. सबसे पहले n ऑफ s क्या हो गया मेरा? n ऑफ s 4 डाइस है. 6 raised to 4 is nothing but n of s. Now in that case what is my favorable event? कि एटलीस्ट एक जगह पर तो 1 होना चाहिए. So it could be 1 और फिर बाकी 3 में कुछ भी हो सकता था. सेकेंड में 1, बाकी 3 में. तो there are number of elements in that event is very high. So what I think this event to find is very difficult. What is complement of this? At least once का उल्टा पार्ट क्या होगा? At most what? At least 1 यानी कि एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 बार हो सकता है, या फिर चारों बार 1 हो सकता है. राइट? इसका उल्टा क्या होगा कि एक भी बार 1 आना ही नहीं चाहिए. एंड दैट इवेंट इज मच सिंपलर, है ना? बिकॉज अगर मैं बोलूं एक भी बार 1 नहीं आना चाहिए, दैट मींस फॉर ईच ऑफ देम आई हैव हाउ मेनी चॉइसेस? 4 के 5 चॉइसेस. बिकॉज अगर पहला डाई रूल के उसमें 1 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा. सो इट इज 5 into 5 into 5 into 5, 5 raised to 4 आंसर आ जाएगा. Correct? So many a times this will happen. Given event is difficult to find, but its complement is easy. Right? So in that situation, we use a formula. Probability of A complement is same as 1 minus probability of A. Okay? Let's just directly go to the problems. Problem is ticket numbered from 1 to 20 are mixed up, and then the tickets are drawn at random. We have to find out the probability that the ticket drawn for the number are multiple of 3
or it is a multiple of 5. What they are asking is probability of A union B, right? So कैसे सोचोगे प्रॉब्लम के बारे में? Probability of A plus probability of B minus probability A intersection. ये एक तरीका हो सकता था डेफिनेटली, बट यहाँ पे if you observe numbers are very small, है ना, बहुत ही छोटे नंबर है. यहाँ पर 1 से लेके 20. What I do, सबसे पहले मेरा n of s क्या है? N of s is 20. I can think of this event A. I can list the elements of A. Either it should be multiple of 3 or it should be multiple of 5. So I'll start writing. It is 3, 5, लूंगा ना 5, 5, 6, 9 and then 10, 12, 15, 18 and 20. So this is nothing but the A. Then what is my n of A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So it is 9. Answer is 9 by 20. देखो ये चीज कहते हैं ना सिंपल थी बिकॉज नंबर्स छोटा है. अगर सपोज सेम क्वेश्चन में आपको पूछता हूँ कि 1 to 100 है, अब क्या सोचोगे? 1 to 100, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, फिर बोथ के मल्टीपल, क्या सोचते हो ऐसे प्रॉब्लम? सेम प्रॉब्लम. नाउ you have to find out the probability of events such that it is multiple of 3 or of 5. अब नंबर्स बड़े, अब लिस्टिंग करना थोड़ा शायद से लेंथी हो जाए, इतना टाइम नहीं है डेफिनेटली एग्जाम. क्या सोचेंगे ऐसे प्रॉब्लम के बारे में? नाउ इन दिस केस अब मैं क्या करूँ ना, जो भी मल्टीपल ऑफ 3 है ना उसको मैं सेट A का नाम दे देता हूँ, जो मल्टीपल ऑफ B है उसको मैं इस तरीके से 5, राइट? मल्टीपल ऑफ 5 हैज बीन इनसाइड. नाउ आई जस्ट नीड टू थिंक अबाउट n ऑफ A क्या होगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन की एलिमेंट्स क्या है. अगर मुझे n ऑफ A मिल गया तो भी मेरा काम हो जाएगा ना. सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा A के अंदर? सबसे पहला एलिमेंट होगा 3. लास्ट एलिमेंट क्या होगा A के अंदर? 99. So the first element is actually nothing but 3 into 1 and the last element is nothing but 3 into 33. Total कितने elements हो गए? 33 elements हो गए पक्का. Similarly, I want to find out n of B. So सबसे पहला element होगा 5. That is 5 1 जा. Last element क्या होगा? That is nothing but 5 into 20. So the number of element inside B is nothing but 20. But what we know, probability of A union B के मुझे intersection का भी number चाहिए. Right? If I say A intersection B, that means what? दोनों के common multiples. सबसे छोटा multiple क्या है common दोनों का? If a number is a common multiple of 3 and 5, then that number must be a multiple of 15. और कोई choice नहीं है ना? Least common multiple के ही सारे multiple हो गए जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है. So that means whenever we have intersection, we have to think about the LCM. है ना, ये प्रॉब्लम काउंटिंग में भी आ सकता था और प्रोबेबिलिटी में भी आ सकता है, राइट? सो हियर 15. अगेन आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज n ऑफ A इंटरसेक्शन B. फर्स्ट मल्टीपल होगा 15 खुद एंड द लास्ट मल्टीपल इज 90. सो इट इज 90 कैन बी रिटन एज 15 into 6. 6 जा ना, 15 6 जा, दो बार लिया तो 30 उस तरीके से 60. सो इट इज नथिंग बट 6. So what is my n of A union B? It is 33 plus 20 and common वाले minus 6. That is 33 plus 14. That is nothing but 47. The required answer in that case would be 47 by 100 if the number are large. देखो ये क्वेश्चन को और डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ेगा. यहाँ पे मैंने 1 से लेके 100 लिया ना. It might be possible they start in between 200 से लेके 400. बट द सेम कॉन्सेप्ट विल गो. मैं ये सोचूंगा 200 से पहला मल्टीपल कौन सा है, फिर लास्ट मल्टीपल कौन सा आ रहा है, उसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं. दिस वे वी कैन गो फॉर दिस प्रॉब्लम्स. ठीक है, और इंटरसेक्शन के अंदर एलसीएम लेना. ठीक है.
इज इट फाइन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Done? Yes, sir. Okay. Let's see next problem. A bag contains 2 red, 3 green, 2 blue balls. 2 balls are drawn at random. What is the probability that none of the ball is of blue color? क्या सोचते हो क्वेश्चन के बारे में? सबसे पहला चीज प्रोबेबिलिटी है तो n of s पता होना चाहिए, है ना. सैंपल स्पेस क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने मेरे पास? 7 balls. फ्रॉम द 7 balls हाउ मेनी आई एम ड्रॉइंग? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं ना. सो दैट मीन्स व्हाट आई शुड यूज? ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्या यूज करते हैं हम लोग? परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन. ठीक है, वी यूज कॉम्बिनेशन व्हेनेवर द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहली चीज ऐसे सिचुएशन में n of s जो है वो क्या होगा? आउट ऑफ 7 balls आई नीड टू ड्रॉ 2 balls. सिंस द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट आई यूज कॉम्बिनेशन. इसका फॉर्मूला क्या था? 7 factorial divided by 2 factorial into 5 factorial, right? So this is same as what? 7 into 6 into 5 factorial divided by 2 into 5 factorial. 3 and it is nothing but 21. So this many ways I can draw 2 balls. But मेरा जो favorable event है उसके बारे में क्या सोचोगे? Favorable event क्या है? None of the ball is a blue color. यानी कि blue नहीं होना चाहिए, बाकी सब को allowed है ना. So that means क्या होगा? अगर blue हटा दिया तो कितने balls है मेरे पास? 5. So that means favorable event के अंदर it is 5c2 and this is same as what? 5 factorial divided by 2 factorial, 3 factorial and that is same as what? 5 into 4, 3 factorial cancel divided by 2, answer is nothing but 10. Answer क्या है? Option A, right? This 10 by 20. Suppose the same question we try to make it थोड़ा difficult. किस तरीके से हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं? अगर सपोज मैंने क्वेश्चन बोला कि both the ball should be of different color, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया. अब आपको सोचना पड़ेगा डिफरेंट कलर के बॉल होने चाहिए. क्या सोचते हो फिर इसके बारे में? हाँ, व्हाट विल डू? वी विल ऐड, बट देयर शुड बी सिचुएशंस, है ना. फर्स्ट सिचुएशन क्या होगा? एक रेड है दूसरा ग्रीन है. एक ये हो सकता है सिचुएशन, रेड के साथ ब्लू हो सकता था, ये सिचुएशन है, या फिर ब्लू के साथ ग्रीन हो सकता है, ये सिचुएशन. दिस मींस दिस आर नथिंग बट द केसेस, right? Whenever we have cases, that means or है बीच में. It could be this or this or this, right? सबसे पहला, in how many ways I can draw such that one ball is red and one ball is green? Red ball, how many ways I can draw a single red ball? Total कितने red balls है? 2. So it is 2c1. That is actually same as 2. And what I'm going to do is I'm going to get a green ball. Green ball could be obtained in 3c1 and that is nothing but 3. So in the first case there are 6 ways to do this. Second case के अंदर directly answer कर सकते हैं 2 into 2, the answer is nothing but 4. Third case के अंदर it is 2 into 3, answer is nothing but 6. Now total क्या होगा इन सबका? ऐड करना पड़ेगा because cases है यानी कि सिचुएशन में और है, right? So it is nothing but 16. So the required probability in that case would be 16 out of 21. The probability of getting both the balls of different color is nothing but 16 out of 21. Is it fine? Question जिस तरीके से पूछा, अगर काउंटिंग सही से कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा. कहाँ अटके हो सर? सेकंड वाला सिचुएशन नहीं समझा मैंने क्या पूछा हो? Let us just try to revise it again. क्या पूछा था सिचुएशन के अंदर कि both ball should be of different colors. Right, so there, what is the scenario? Scenario is like it could be either red green or it could be red blue or it could be blue green. Right, so हमने क्या बोला? हर एक सिचुएशन के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ वेज ढूंढे. Now, if I want to draw red green, सबसे पहला चीज मुझे एक रेड बॉल ड्रॉ करना पड़ेगा. How many ways I can draw a red ball?
how many totals do I have in balls? 2. From 2 I will draw 1. So it is 2c1 that is equal to 2 है ना, because दो बॉल में से एक बॉल कितने वेज में ले सकता हूँ, मेरे पास दो ही चॉइस है ना, so it is 2 डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं. सिमिलरली ग्रीन के लिए 3 आया आंसर. नाउ रेड एंड ग्रीन, इसलिए हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली वी फाउंड फॉर द अदर नंबर्स. नाउ इट कुड बी आइदर फर्स्ट केस और सेकंड और थर्ड, और वर्ड यानी कि ऐड करना. सबको ऐड करने के बाद जो मिला दैट इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच बोथ द बॉल्स विल बी ऑफ डिफरेंट कलर्स. Hence the answer is something but 16 divided by 25. Is it fine? Okay. Done? चले? Okay. Try this. सबसे पहले 3 कॉइन को अगर टॉस करूंगा तो n ऑफ s क्या हो जाएगा? 2 raised to 3, बिकॉज मेरे पास 3 प्लेस है, हर एक प्लेस के पास 2 चॉइस है, हेड या फिर टेल. 2 into 2 into 2, आंसर इज नथिंग बट 8. So there are 8 possible outcome. What is the probability of getting at most 2 head? यानी कि at most यानी कि 0 head भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. So one way is just start counting. But इसका complement part क्या है? इसका complement क्या है? At most 2 head, ज्यादा से ज्यादा 2. इसका complement क्या होगा? At most 2 यानी कि it could be 0, it could be 1, it could be 2 heads. लेकिन क्या छूट गया? तीनों वाला. यानी कि इसका complement part क्या है? All 3 are head. That is not counted over here. इसमें सब कुछ काउंट हुआ, 0, 1, 2 काउंट हुआ, लेकिन एक ही चीज काउंट हुआ, all 3 of them are head. Right? So what I found is my n of a complement is same as what? All 3 are heads. ऐसे का कितने हो गए? एक ही होगा ना, because h हो गया ना, so it is 1. So the probability of a complement is what? 1 by a. Probability of required event is what? 1 minus 1 by a. Answer is same as. Is it okay? तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये एट मोस्ट या फिर एटलीस्ट वर्ड होता है ना, एक तरीका होता है कि उसको नॉर्मली सॉल्व किया जाए, दूसरा होता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट के बारे में सोचा जाए. मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लीमेंट विल हेल्प यू आउट. डन? चले? ओके. वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड. क्या है कि दो डाइस को रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज इवन नंबर. यहाँ पे स्टूडेंट की बहुत सारी लॉजिकल थिंकिंग चेक की जा रही है. एक तो आपको प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, आपको काउंटिंग पता होना चाहिए, उसके साथ साथ आप यू शुड बी कंफर्टेबल विद नंबर्स एज वेल, है ना. यहाँ पे बोला है कि प्रोडक्ट इज इवन नंबर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक कोई तो एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शुड बी इवन नंबर, तब जाके आंसर आएगा. नाउ आई यूज द वर्ड एटलीस्ट. सबसे पहला एन ऑफ एस क्या है इस सिचुएशन के अंदर? 2 डाइस 6 raised to 2, है ना, that is 36. Now my favorable event is कि product should be even number, right? That means at least one of the number is even, correct? So it is at least one is even. What is complement of it? At least one of the number is even. Complement क्या होगा? None of the number are even, right? Because at least यानी कि एक या फिर दोनों even होना. अब मैं बोलूंगा कि दोनों even नहीं है. What is n of a complement?
मतलब कि मैं जब डाइस रोल करूंगा एक भी इवन नंबर नहीं आएगा, यानी कि आएगा तो क्या आएगा, ऑड नंबर। यानी कि पहला डाई रोल किया मेरे पास, हाउ मेनी वेज इट कैन कम, 1 3 एंड 5, कितने वेज हो गए, 3 वेज। सेकेंड डाइस के लिए भी 3 वे, टोटल नंबर ऑफ वेज, हाँ, इट इज 3 स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 9, है ना। फर्स्ट इन 3 वेज एंड सेकंड इन 3 वेज, आंसर इज नथिंग बट 9। रिक्वायर्ड आंसर इज, so probability of a complement is 9 by 36, and that is same as 1 by 9 fours are right, 1 by 4. So probability of A is 3 by 4. Is it fine? समझा किस तरीके से सिचुएशन को सोचा? क्या हो रहा है सर? हाँ ना, प्रोडक्ट इवन नंबर होना चाहिए। प्रोडक्ट इवन नंबर कब होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इवन इफ एंड ओनली आइदर ऑफ देम इज इवन, या फिर बोथ ऑफ देम आर इवन, है ना। इसीलिए उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए कि भाई कोई भी इवन ना हो, तभी जाके पॉसिबल। इज इट फाइन? देखेंगे। ठंडी लगने लगा। बंद कर दो, बंद कर दो। Okay, चलिए next question. See this problem. In a class there are 15 boys 10 girls, 3 students are selected at random. Selected और यानी कि combination को use करना है, right? The probability of getting one girl and 2 boys is what? परम्यूटेशन के कॉम्बिनेशन, हर एक बार कॉम्बिनेशन, बिकॉज ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज एन ऑफ एस क्या होगा? वेरी गुड, कोई सही गया। कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कितना सिलेक्ट करना है? 3। सो आंसर इज 25C3, करेक्ट। सो व्हेनेवर यू गो फॉर एनसीआर, एनसीआर किस तरीके से निकाल सकते हो, और एक तरीका क्या होता है, इफ इट इज 25C3, आप 25 से स्टार्ट करके 3 नंबर लिखो, राइट। इट इज 24 23, है ना, 3 नंबर्स लिखे डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इट इज 3 into 2 into 1। बिकॉज आप क्या करोगे, इसको आप 25 फैक्टोरियल लिखोगे, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 22 फैक्टोरियल। 22 फैक्टोरियल तो कट होने ही वाला है ना। 22 फैक्टोरियल कब आएगा? 3 नंबर के बाद आएगा। इस हिसाब से हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो अगर आपके पास एनसीआर है तो कैसे सोचोगे, एन से स्टार्ट करके आर नंबर्स लिखो डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, आ रहा है टेबल में, इट इज 3 8, राइट, ये 4, so it is 25 into 4 कितना होता है? 25 4 is 100, 100 into this is nothing but 2300 is nothing but my n of s. Now how many ways I can choose a girl and 2 boy? Multiply करेंगे, yes. So how many way I can choose a single girl? 10 में से एक, यानी कि it is 10C1, 10C1 is actually always same as 10। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आउट ऑफ 15 आई विल चूज 2। 15 इसको कैसे निकाल सकते हैं? 15 से 2 नंबर लिखो divided by 2 factorial, that is nothing but 2. Answer is nothing but this. What is 15 into 7? It is 1 not 5, because 6 जा करोगे तो 90 होता है, 7 चाहिए होता है। So the answer is nothing but 1050. Probability of A क्या होगा? 1050 divided by 2300। सबसे पहले 0 0 कैंसिल, 5 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में ऊपर कब आएगा? 21 पे आएगा, और अगर इसको 5 से डिवाइड किया तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। 46। So today it is going to be a last topic on quantitative aptitude.
Correct. From the next time whenever we meet we are going to work on logic reasoning. और अभी थोड़ा अच्छा खासा ब्रेक भी रहेगा. क्या वो लॉजिक आप रीजनिंग अलग है, आप जो पढ़ते हो लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक दैट इज अरेंजमेंट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. वो ब्लड रिलेशन हो सकता है, डायरेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है, सर्कल में वो सारे ये डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस होता है, अरेंजमेंट. ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम. यस, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर करेंगे. देयर आर लॉटरी है जिसमें से 10 में प्राइस है और 25 ब्लैंक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल विन द प्राइज? Yes, the answer is it is 10. 35 में से 10 is the required answer. मोस्टली क्या होता है नंबर्स हम लोग ऐसे देख के लिख लेते हैं. दैट इज द रीजन ये क्वेश्चन. यहाँ पे क्या है 10 is a favorable outcome है ना. ये प्राइस वाला जो था टिकट दैट आर फेवरेबल टू मी आउट ऑफ टोटल हाउ मेनी आउट ऑफ 35. सो द आंसर इज नथिंग बट इट इज 2/7. इज इट फाइन? चलेंगे. नाउ कम्स टू द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन, कार्ड्स. Right? From a pack of 52 cards, ज़्यादा कुछ नहीं वहाँ पे. 2 cards are drawn at random. What is the probability that the both cards being king? सबसे पहले n of s क्या हो रहा है? n of s is nothing because draw कर रहा है तो it should be 52c2. फेवरेबल आउटकम के बारे में सोचता. Both are king. टोटल किंग कितने होता है? 4. 4 में से 4c2. Now probability of A, it is nothing but 4c2. 4c2 एक्चुअल में है क्या ये? It is actually nothing but 4 into 3 divided by 2. हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं और this is same as what 52 into 51 divided by 2 factorial, that is 2. 26. So the required answer is nothing but 2 into 3 divided by 26 into 51. सबसे पहले कौन सा कट हो रहा है ये इसके साथ? आंसर क्या रहा है? 13. इट इज नथिंग बट ये इसके साथ कट होगा. आंसर क्या रहा है? 51. 30 plus 21. 21 कब आता है? 7, यानी कि इट इज 70. सो आंसर इज नथिंग बट 1/13 into 17. क्या होना चाहिए ऑप्शन में से? ऑप्शन. ठीक है, इज इट फाइन? ओके, ट्राई करेंगे. करेक्ट. सबसे पहले अ कार्ड इज ड्रॉन. एन ऑफ एस क्या है? एक कार्ड ड्रॉ करने को कितने तरीके हैं आपके पास? 52c1, दैट इज नथिंग बट 52 ओनली. लाइक देयर आर 52 ways you can draw a card. प्रोबेबिलिटी किसका पूछा उन्होंने? क्वीन ऑफ क्लब, यानी कि उन्होंने डिटेल में बताया कि कौन सा वाला क्वीन चाहिए. सो दैट इज ओनली द सिंगल वन, राइट? सो वो वाला एक और बोला है, तो दूसरा यानी कि किंग ऑफ हार्ट, दैट इज ऑल्सो वन मोर कार्ड. सो 2 cards आर फेवरेबल आउट ऑफ 52. आंसर कौन सा होगा? 1 by, because answer is nothing but 2 cards are favorable out of 52. Is it fine? Yes. None of them are tail, है ना? So सबसे पहले n of s क्या हो रहा है सिचुएशन में? नहीं 5 times, it is 2 raised to 5. Now whatever is my event, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? At least one of them is tail. None of them is tail is nothing but the complement. एक भी tail नहीं होना चाहिए, only one. तो आंसर is nothing but 1/32 is for probability of A complement. Required answer is 31/32 because 1 में से माइनस करते हैं. ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे ही दिया था क्वेश्चन. ठीक है, यू शुड थिंक एटलीस्ट वन, यानी कि कॉम्प्लीमेंट विल हेल्प यू आउट. ठीक है, हाँ ऑप्शन होता तो बता देता था. यस. देखो कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम हो ना, व्हेनेवर वी आल्सो क्रिएट सम क्वेश्चंस,
वी मेक श्योर कि हर एक टॉपिक कवर हो, और ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। हाँ देखो हर एक टॉपिक की अलग डिफिकल्टी लेवल होती है, कुछ टॉपिक इजी होते हैं, कुछ टॉपिक डिफिकल्ट होते हैं। सो व्हेन आई सेड दैट, मैंने सबसे पहला सेशन में यही बताया था, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो ना, यू गो विथ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, और पेपर के अंदर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। एंड इट माइट बी पॉसिबल आपको कोई टॉपिक इजीली सॉल्व हो जाता है ना, तो सबसे पहले उसमें से ज्यादा मार्क्स लो, और कट ऑफ को क्रॉस करने की कोशिश करो, सबसे पहला काम ये होना चाहिए। ठीक है, इस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, if a number is chosen at random from 1 to 100, then the probability that the chosen number is a perfect cube. One of the easy question. सिर्फ थोड़ा सोचना है, बहुत इजी है। ठीक है। 1/25 1/25 नहीं, 1/2 1/10 कैसे? 10 कौन है? Sorry, read the question again. Perfect cube. Perfect cube. कौन कौन से? 1, 8, 27, फिर 64। 5 का क्यूब तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 ही नंबर है, 4 आउट ऑफ 100। सो आंसर इज, ऑप्शन देख के दिमाग चलता है। ठीक है, सो आंसर किस तरीके से है समझा? इट इज 4 आउट ऑफ 100 आर फेवरेबल। Out of first 20 natural number, one number is selected at random. What is the probability that either it is an even number or it is a prime number? Even number और a prime number. सबसे पहले अगर सपोज इवन नंबर के बारे में सोचोगे तो कितने इवन नंबर हो गए? 10 हो गए ना। सो n of a is definitely going to be 10. अगर मैं प्राइम नंबर के बारे में सोचता हूँ, कौन कौन से प्राइम नंबर्स हो गए? 1 नहीं होता है सर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 हो गया। कितने हो गए? 3 + 3 + 2। आंसर इज n of b is nothing but 8। करेक्ट। n of a इंटरसेक्शन b क्या होगा? ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है? 2। सो अकेला एक ही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज व्हाट? इट इज 10 + 8। आ जाओ, 10 + 8 - 1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज रिक्वायर्ड नंबर? टोटल कितना थे? 20। सो आंसर इज नथिंग बट 17 आउट ऑफ 20 नंबर्स। ठीक है, इज इट फाइन? समझा? चले, चलो आंसर करो इसको। यानी कि नॉर्मल टाइप लिखा है। 6/, सबसे पहले n of s, n of s क्या हो रहा है? 6⁻3। n of a क्या होगा? एक्चुअली यू कैन थिंक ऑफ द सेट a, तीनों 1 आ गए, तीनों 2 आ गए, तीनों 3 आ गए, क्या कितने हो गए? ऐसे 6 नंबर्स हो गए आपका। सो n of a is nothing but 6। द रिक्वायर्ड आंसर इज नथिंग बट दिस डिवाइड बाय दिस। क्या होगा ये? 6 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब है ना? हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज थोड़ा थोड़ा आ जाएगा ना प्रोबेबिलिटी। ओके, बोला था आंसर आने के बाद। यस, चलो इसका आंसर आप पहले दे दो, हमसे पहले। पहले आप बताओ, फिर हम लोग सोचते हैं। Nine bulb out of which 4 are defective, यानी कि 5 अच्छा है definitely. If 4 bulbs are selected at random, find the probability that all 4 of them are defective. इतने अनलकी हो आप। ठीक है, सबसे पहला n of s किस तरीके से सोचोगे? Total number of ways in which I can select 4 bulb is n of s, sorry. Total number of ways I can select 4 bulb is 9c4। सबसे पहला ये
फिर n of a, मुझे सारे के सारे कैसे चाहिए? So it is 4c4. What is 4c4 actually? 1. Very good. Now what is the same as? This is nothing but 9 into 8, 7, 4 number लिखा divided by 4 factorial. 4, 3, 2 and 1. ये 6, ये 2. आंसर क्या आया? 9 into 14 and that is nothing but 126. Answer is option. ठीक है. Is it fine? किस तरीके से हो रहा है ना? ये डिफेक्टिव बल्ब वाले प्रॉब्लम्स होते ही है कहीं ना कहीं. चीजें सिंपल होती है बट अलग तरीके से लिखा है बस. Might not be. नहीं, अगर आप सैंपल स्पेस निकालोगे ना, अगर सपोज n of a का वैल्यू 2 आता ना तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है. करेक्ट, बिकॉज इट इज 126 का हाफ है. करेक्ट, अगर वो 2 होता वैसे n of a is also important, बट जैसे ही वहां पे 1 मिला ना तो वी न्यू कि हाँ C, D और E में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज ऊपर 1 है तो उन तीनों में से कोई एक करेक्ट आंसर होना चाहिए. करेक्ट. चल सकते हैं आगे. One of the most interesting question. Just think about one of the simple question. थोड़ा सोचोगे तो मिल जाएगा कि इसका लीप ईयर का मतलब क्या होता है. देखो 366 डेज इज परफेक्ट डेफिनेशन. और क्या डेफिनेशन बोला आपने? 4 साल में एक बार आता है. ये डेफिनेशन बहुत गलत है. ठीक है. इट इज हाफ द वे ट्रू. एवरी 4 ईयर इट कम्स, बट बीच में कहीं एक स्किप होता है. वो स्किप के बारे में जानेंगे. ठीक है. बट बिफोर राइटिंग एवरीथिंग इन डिटेल, सबसे पहले every one of us know कि उसके अंदर 366 days हो गए पक्का. Right? If it is a leap year, it should have 366 days. Now 366 days यानी कि कितने वीक्स होता है? 50? No. इसको डिवाइडेड बाई 7. 366 को 7 से डिवाइड करो. हाँ, 52. Yes, it is 52 weeks यानी कि 52 times 7 कितने डेज बचे? नहीं, 1 तो नहीं है ना. सपोज वी डिवाइड. यस, आंसर इज 2. इट इज 366 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7. 7 5s are 35. 16 2s are 14. देन द रिमाइंडर इज 2 यानी कि 2 डेज बचा. राइट. सो दैट मींस इफ इट हैज 52 वीक्स, इट मींस हर एक दिन 52 टाइम्स आएगा. यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, एवरीथिंग विल कम एटलीस्ट फॉर 52. नाउ ये जो एक्स्ट्रा 2 जो है, दिस एक्स्ट्रा 2 could be what? It could be my Sunday, Monday. It could be Monday, Tuesday हो सकता है वो, है ना. Can it be Sunday, Tuesday? It cannot be because एक के बाद एक दिन आएगा ना, तो ऐसा नहीं आएगा. ठीक है. सो जो 2 दिन है वो सीक्वेंस में होने चाहिए. इट इज संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इट शुड बी सैटरडे, संडे और फ्राइडे, सैटरडे बाकी है ना. दिस इज फ्राइडे एंड सैटरडे. हो गया ना सब? 1 2 3 4 5 6 7. सो दैट मीन्स जो बाकी बचे दिन है, 2 दिन है, that could be either of this. Right? हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? It should have 53 Sundays and 52 Mondays. है ना. सो इसमें से ये बताओ कि 53 संडे कब हो सकता है? राइट. जब कभी भी देखो यहां पर अगर सपोज ये आता है then it is 53 Sundays. अगर ये भी आया then it is 53 Sundays. But I will not choose this. Why? Because ये आया तो दोनों 53 होगा. So out of 7 probabilities, 7 possible outcome, only 1 is favorable, and that is nothing but Saturday, Sunday होना, है ना. So the answer is 1 out of 7. Is it fine? है ना.
So with this all simple types या फिर हम लोग बोले every type of probability questions get covered. दो चीजें पता होनी चाहिए. You should be good in counting and the second thing is definition of probability. अगर ये दो चीज पता है तो हो जाएगा बहुत easy. बट यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने लीप ईयर के बारे में बात की, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द कैलेंडर नाउ. ठीक है, कैलेंडर के ऊपर कैसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने. ठीक है, सो कैलेंडर यानी कि सबसे पहली चीज क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं लीप ईयर के ऊपर, बिकॉज वही एक फंडामेंटल है कि जहां पर आपको क्वेश्चंस होंगे वहीं पर ही आप अटकोगे. सबसे पहली चीज, लीप ईयर क्यों चाहिए हमें? भाई वी नीड वन दैट 29 हर 4 साल में जो आप बोल रहे थे, which is not every 4 years, it is half the way true कि हर एक 4 साल में आता है, लेकिन बीच में एक बार छोड़ देते, एक नहीं एक से ज्यादा. उसके बारे में भी सोचेंगे. बट व्हाई वी नीड दैट 29th of Feb? There must be reason. उन्होंने सडनली तो ये नहीं सोचा कि एक 4 साल में एक बार क्यों? Because the way the calendar has been made, we want to sync with our solar system. है ना, हमें हमारे सोलर सिस्टम के साथ सिंक चाहिए था, उसके लिए हम लोग ये कैलेंडर ईयर, अदरवाइज हर एक मंथ 30 डेज का क्यों नहीं है ना, 31 30, ये जो पैटर्न है वो पैटर्न को क्यों बनाया, है ना. सो आफ्टर गेटिंग दैट पैटर्न, इफ यू ऑब्जर्व एवरी ईयर इन आवर सोलर सिस्टम इज अबाउट 365 and 1/4 ऑफ द डे. हमारे सोलर सिस्टम के अंदर इतने दिन में उसका एक साल खत्म होता है ना, एंड मोर प्रिसाइजली इतना भी नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंस जाता है. इट इज अराउंड, ये जो है ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, 365 डेज एंड 1/4 ऑफ द डे, यानी कितना आवर होता है? 1/4 ऑफ द डे में कितना आवर्स होता है? 1/4 ऑफ द डे 6 hours, एंड एक्चुअली इट टेक्स 5 hours एंड अराउंड 49 minutes, है ना. तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि हमारे सोलर सिस्टम अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, उतना इतना परफेक्शन नहीं है कि 365 डेज में करो. तो पहली चीज ये समझेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम में एवरी ईयर इज 365 and 1/4 ऑफ द डे. तो हम लोग क्या करते हैं, 3 साल ये 1/4 ऑफ द डे को इग्नोर करते हैं, और चौथे साल जब वो 1/4 मिल जाता है तब जाके एक पूरा दिन बनता है. सो दैट हैज बीन काउंटेड इन द 4th ईयर एज वन एक्स्ट्रा डे, दैट इज 29th of Feb. ठीक है, सो दैट इज अ रीजन कि एवरी 4 ईयर वी हैव इट. एंड नाउ व्हेन आई से एवरी 4 ईयर, बीच में कहीं हमें स्किप करना पड़ता है, बिकॉज मैंने क्या बोला कि वो 6 घंटा पूरा नहीं है, उसके अंदर कुछ 11 मिनट का डिफरेंस आ जाता है. अब ये 11 मिनट का जो डिफरेंस है वो 4 साल या फिर 8 साल में हमें फर्क नहीं गिराएगा, बट आफ्टर 120 years इट विल मेक अ डिफरेंस, है ना. आफ्टर 120 years वो 11 मिनट बन के पूरा दिन बन जाएगा. सो दैट इज द रीजन व्हाट वी डू इज वी स्किप the leap year on centuries. For an example, what you said is कि हर एक 4 साल में leap year होता है, यानी कि if I tell you 2004 it should be a leap year, 2008 भी होगा, 12 भी होगा. But if I tell you this is divisible by 4, this number 1900 is divisible by 4, but this is not a leap year. Why? Because this is a century. अगर मैं आपको बोलूं ना 2000, तो इसको हमने लीप ईयर बोला, इसको लीप ईयर नहीं बोलेगा 1900 को, लेकिन 2000 को हम लोग लीप ईयर बोलेंगे, बिकॉज जो ये 11 मिनट का डिफरेंस है ना, ये 11 मिनट का डिफरेंस हम लोग निकालते हैं बाय स्किपिंग द लीप ईयर ऑन सेंचुरीज, यानी कि 100, 200 एंड 300. लेकिन वापस से जब 400 का मल्टीपल होता है ना, तो वी काउंट इट, बिकॉज 3 जो हम लोग ने लीप ईयर स्किप किए ना, वहां पे वो काउंटिंग हो जाएगा. ठीक है, हमने क्या बोला कि 120 ईयर में एक दिन बढ़ रहा है, वो 120 ईयर में जो एक दिन बढ़ा ना, वो हम लोग ने वापस से 400 सेंचुरी था ना, वहां पे ऐड कर दिया. सो हाउ वी काउंट लीप ईयर? सबसे पहला कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 4, बट इट शुड नॉट बी अ सेंचुरी. बट इफ इट इज अ सेंचुरी इट शुड बी डिविजिबल बाय 400. सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि पीछे 2 जीरो होनी चाहिए, है ना. अगर पीछे 2 जीरो है तो वो लीप ईयर कब बनेगा? इफ इट इज डिविजिबल बाय 400 देन ओनली. ठीक है, एक बार इस फंडामेंटल को थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, है ना. सो फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इज नथिंग बट द कांसेप्ट ऑफ ऑड डेज. अभी जो हमने किया ना उसको वापस से एक बार रिवाइज करेंगे, लिखेंगे भी. बट क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं? इफ माय फर्स्ट बर्थडे इज ऑन दिस डे, आज से 10 साल बाद कौन से दिन पे होगा? आज अगर ये डे है तो आज से 2 साल पहले क्या होगा? या फिर the most difficult question, they don't give you any information but still ask you to tell which day is today, या फिर इस दिन को क्या होगा, without giving any base information.
So to find out without knowing anything, can I find out the day on that particular date? Answer is yes. We should know how they have created the calendar and everything will be fine. To understand that, we should know the concept of odd days. Odd days means what? What is an extra coming? What we know, suppose अगर मेरे पास कोई एक normal year है, उसके अंदर कितना होता है? 365 days होता है. 365 days का मतलब क्या होता है कि I have 52 weeks and one extra day, right? So this extra day जो है वो क्या करेगा ना, वो शिफ्ट करता है चीजों को. आज अगर मेरा बर्थडे है जो मंडे को आ रहा है इस साल, नेक्स्ट ईयर वो कब आएगा? अगर सपोज इट शुड हैव बीन अ परफेक्ट वीक, तो क्या होगा ना कि सेम डे को आना चाहिए था, राइट? बट सिंस एवरी ईयर द डे हैज वन एक्स्ट्रा डे, जिससे हमारा जो वीक है ना वो एक डे से आगे बढ़ जाए. अगर नॉर्मल ईयर है तो एक दिन से आगे बढ़ेगा, अगर लीप ईयर है तो 2 दिन, बिकॉज 2 ऑड डेज होता है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑड डे? जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना ईयर का, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ ऑड डे. एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ व्हाट? एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द वीक दैट इज लेफ्ट. This many week is completed. What is an extra part of the week left? It is called as an odd days. Is it fine? Odd days का मतलब समझा? Okay. Now leap year का definition क्या होगा? If it is divisible by 4, yes, it is a leap year, but it should not be century. If it is a century, then it should be divisible by 400. Is it fine? कोई भी year leap year कब होगा? अगर वो divisible by 4 है. लेकिन अगर century निकला तो वो डिविजिबल बाय 4 है, लेकिन उसके बाद उसको 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा लीप ईयर होने के लिए. करेक्ट. इफ इट इज डिविजिबल बाय 400, इट शुड बी डिविजिबल बाय, सॉरी, इट शुड, इफ इट इज डिविजिबल बाय 100, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 400 टू बिकम अ लीप ईयर. ठीक है? लेट्स सी सम एग्जांपल. देखो यहां पर ये ऊपर जो है वो सारे के सारे लीप ईयर है. क्यों? बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 4. तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं. बाकी इफ यू ऑब्जर्व, ये सारे जो ईयर है दे आर सेंचुरी सेकंड एग्जांपल के अंदर, बट सेंचुरी के साथ साथ वो क्या है? दे आर डिविजिबल बाय 400 एज वेल, हेंस दे आल्सो बिकम अ लीप ईयर. अगर उसको छोड़ के नीचे आप सारे नंबर्स देखोगे, 2001, 2, 3, पहले तो ये सारे 4 से डिविजिबल है नहीं, बट 1800 इज डिविजिबल बाय 4, बट इट इज नॉट अ लीप ईयर बिकॉज वो सेंचुरी है लेकिन डिविजिबल बाय 400 नहीं है. सिमिलर गोज फॉर 2100. इट इज अ सेंचुरी not divisible by 400, hence it is not a leap year. यानी कि ये जो नीचे वाले जो years है, this are going to give me only one odd day, है ना? बिकॉज हमें अल्टीमेटली इंटरेस्ट सिर्फ उसमें ही है कि कितने odd day एक साल देने वाला है. क्वेश्चन उसी हिसाब से होगा कि कितने odd days हो रहा है. बेस्ड ऑन इट यू विल शिफ्ट योर डे एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है? ऑर्डिनरी डेज 365 days, everyone know. Now counting the odd days. अगर सपोज मेरे पास 100 ईयर है, 100 years, how many odd days I will have? एक ईयर मुझे कितना ऑड डे देता है? एक. और लीप ईयर है तो 2. अगर मेरे पास 100 years है तो उसके अंदर नॉर्मल ईयर्स कितने आएंगे, लीप ईयर कितने आएंगे? 75-25 श्योर. अगर आप मुझे 75-25 बोलते हो तो आपने 100 को भी लीप ईयर में काउंट किया है ना. सो दैट मींस इस 100 में से 76 जो होंगे वो नॉर्मल ईयर होने वाला है एंड 24 जो है वो लीप ईयर होने वाला है. नाउ ये 74 जो है वो मुझे कितने ऑड डेज देंगे? 76 ऑड डेज देंगे, और ये मुझे 48 ऑड डेज देने वाला है. टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 4, 1 कैरी, 11, 1, 2. ये ऑड डेज है ना. ऑड डेज यानी कि क्या होता है कि वीक में से कितना बचा, बट ये 124 में तो भी वीक बन सकता है. सो वी डिवाइड दिस बाय 7, राइट? सो इट इज डिवाइडिंग दिस बाय 7. 124 डिवाइडेड बाय 7 क्या आएगा? 1 जा 7, इट इज 5 4, करेक्ट, एंड इट इज 8 जा कितना होता है? 50. हाँ, तो 8 जा नहीं चलेगा ना, 7 जा, सो इट इज 49. 49 is nothing but 5. मतलब एवरी सेंचुरी 5 odd days आर एडेड. यानी कि अगर 100 साल पूरे हो गए तो 5 दिन का शिफ्ट होने वाला है. मंडे है तो आप सैटरडे पहुंच जाओगे. फाइन. दैट मींस 100 years गिव 5 odd days. 200 years कितना देंगे?
correct. So it is 200 will give me 10 odd days. That is same as 3, correct. 300 years, it is 15 odd days, right? And that is same as what? 1. 400 के बारे में क्या सोचते हैं? It is 220, सबसे पहला 20 odd days मिलेगा ना, 5 5 5 5. बट 400 ईयर जो है वो सेंचुरी है प्लस 400 से डिविजिबल है, तो वो साल खुद अपना एक ऑड डे एक्स्ट्रा देगा, करेक्ट. सो दैट इज नथिंग बट दिस प्लस 1, दैट इज सेम एज व्हाट? 21. That is same as what? 0 odd days. So what we observe here, after 400 year calendar repeat itself. ठीक है, तो 400 साल में कैलेंडर का एक सर्कल खत्म होता है ना, एक साइकिल उसका खत्म हो रहा है. दिस इज द वे इट इज मेड कैलेंडर. हम लोग सोचते हैं फेब क्यों है, बीच में से क्यों हटा, सो दिस आर ऑल रीजंस बिहाइंड इट. फेब के अंदर 28 है ना, तो 29 कर दिया. हाँ 28 रखा है, राइट? नहीं, इट इज जस्ट सिंकिंग विद द नेचर. वहां पे है ना, सबसे पहले क्या करेंगे ना, दे यूज्ड टू ऑब्जर्व द स्टार पैटर्न, है ना. फॉर दिस मच ड्यूरेशन दे आर बिहेविंग लाइक दिस, फॉर दिस मच ड्यूरेशन दे आर सीजनल, है ना. अदरवाइज हमें क्या है, इफ यू ऑब्जर्व ना, हमारा जो होता है, इफ यू ऑब्जर्व आवर हिंदू कैलेंडर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पोजीशन एंड द शेप ऑफ आवर मून, है ना, जो रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो दे आर आल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग. Okay, so definitely what we are learning over here is, first thing is 400 year में everything will become zero, correct. अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, no information has been given and just directly पूछा कि इस दिन इस डेट पे क्या डे है, तो we have to start from this, है ना. अगर सपोज मैंने आपको पूछा कि 2001 के अंदर ये दिन को क्या डेट था, यानी कि सॉरी ये डेट को क्या दिन था, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट कि आफ्टर 2000 ईयर there are 0 number of odd days, and फिर वहां से स्टार्ट करके you will go for it. Okay, we'll see some problems, but यहाँ पे हमने इस कैलकुलेशन को देखा. ये कैलकुलेशन समझा है ना, याद रखेंगे. 100 यानी कि 5, 200 यानी कि कितने हो गए? 3 odd days, है ना, एंड 300 यानी कि 1 odd day. बट 400 ईयर हुआ यानी कि 0 से स्टार्ट करें. यहाँ पर ये जो नंबर्स है, यानी कि 5 3 1 0, they will represent a particular day. Whenever we are counting, we will talk about it as well. एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ, मींस 1st January, first date, and the year was 0001. What was the day? That means first year. What was the day? सबसे पहला दिन जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ, that was the Monday. ठीक है, week starts from Monday. So counting starts from 1 from there. If it is Sunday, it becomes 0. ठीक है, because if I tell you 1st January 1st and the first year, that means I have 1 odd day. सबसे पहला दिन है ना, so that is first odd day, that is nothing but Monday. ठीक है, let's see further. Okay, ये चीज हमने देखी. यहाँ पे अगर 400 ईयर में 0 odd days है, तो 800 ईयर में भी 0 odd days, 1200, 600 and 2000 years में भी 0 odd days हो जाएगा. Now, whenever you start counting from 1st January and the first year, we will need this table. This table tells me, अगर suppose आप यहाँ से start करते हो counting करना, कुछ information based information नहीं था, so आप count करने लगे कि कितने odd days मिले, कितने odd days मिले. If you found out 2 odd days, it must be what? It should be Tuesday. अगर 0 odd day है, तो Sunday है आंसर. ठीक है. So odd days 0 से start करो, तो week start करो Sunday से. अगर ऑड डेज अगर आप मंडे से स्टार्ट करें, तो काउंटिंग करो 1 से. ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे, है ना. अदरवाइज चीजें सिंपल होती है. अगर कोई एक पर्टिकुलर डेट का डे दे दिया ना, तो चीजें सिंपल हो जाती है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दैट टू दैट डेट ओनली. अगर कुछ नहीं दिया ना, तो फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट, बट विल ट्राई. ठीक है, कॉन्सेप्ट सही है. प्रॉब्लम ट्राई करके कुछ करता है, हो जाएगा. फाइन, लेट्स सी.
लेट्स सी सच अ प्रॉब्लम. कुछ बेस इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ सीधा का सीधा पूछ जाती है कि 28 मई 2006 को कौन सा डे होना चाहिए. हाँ, यानी कि 0 से स्टार्ट करोगे. लेकिन मुझे क्या पता है कि अगर 2000 साल हो चुके हैं, ये 2000 साल मुझे कितने ऑड डेज देंगे? 0 ऑड डेज. नाउ फ्रॉम दिस 2000 टू व्हाट डेट? 2006 कितने ऑड डेज आएंगे? यस, 1 से स्टार्ट करेंगे, राइट? यस. 2001 से लेके 6 कितने ऑड डेज हो गए? ओके, सो इट इज 2001 से लेके 2 3 4 5 6. सबसे पहले 1 ऑड डे, 1 1 के 2 1, फिर बाद में 2 ले लेते. चलो ठीक है, 2 एंड यहां से यहां 1 ऑड. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इज नथिंग बट इट इज 7. पक्का? ओके, 1 2 3 4 6 हुए ना? 1 2 3 4 5 6. So it is giving me 6 odd days. अब मुझे क्या करना है? मुझे कहां तक पहुंचना है? अभी तो मैं सिर्फ 2006 तक पहुंचा हूं. मुझे कहां तक पहुंचना है? 28 ऑफ मई तक पहुंचना है. अब जनवरी कितने डेज होता है? फेब में उस ईयर में कितने हो गए? मार्च, अप्रैल, इट शुड बी 31. यस, अप्रैल 30 एंड मई में मेरे पास 28 डेज मुझे जाना है. सबसे पहले इन सबको ऐड करेंगे. 8 8 16 16, दिस इज नथिंग बट 8 1 कैरी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 4 प्लस 6 है ना. 6 ऑड डेज ऑलरेडी थे. ऐड करेंगे कितना होगा? इट इज नथिंग बट, हाँ पहले इसको शिफ्ट करें. 1, अच्छा इट इज 4 1 1 5 4 1 5 4, right? When we divide this by 7, answer is 1 5 4. We divide it by 7, answer is nothing but 22. How many odd days left? Answer is Sunday. 0 odd days यानी कि क्या था? Sunday था. Is it fine? रिमाइंडर 0 है ना, परफेक्टली डिवाइड हो गया है ना. देखो ये ऑड डेज का जो टेबल था ना, वो कब लगेगा आपको? वो 0 संडे मंडे वो कब लगेगा? जब आप 0 से स्टार्ट करते हो काउंटिंग, तब वो टेबल काम आएगा. अदरवाइज हम लोग यही सोचते हैं कि कितना शिफ्ट हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वी शिफ्ट द डेज. चल सकते आगे? ट्राई दिस प्रॉब्लम, थोड़ा इजी है. हाँ, 2006 में अगर वो संडे है तो 2007 में क्या होगा? बिकॉज 1 हो जाएगा. 8 में क्या होगा? वो 1 का एडिशन हो गया. बट जब 8 से 9 जाएगा तब 2 ऐड होगा. देखो लीप ईयर में क्या होगा ना, यू शुड मेक श्योर. देखो लीप ईयर तो ऐसा नहीं कि हर बार 2 ऐड होगा. यू शुड मेक श्योर कि फरवरी क्रॉस हो रहा है ना. अगर फरवरी क्रॉस हो रहा है तभी वो 2 और डेज को ऐड करता है. अगर सपोज क्वेश्चन के अंदर फैब से पहले कहीं ना कहीं हो जाता था, खत्म हो जाता, देन यू नीड टू मेक श्योर कि वो एक ही लीप ईयर में ऐड हो रहा है. यहाँ पे आप इधर से आगे चलेंगे तो 1. सो टोटल नंबर ऑफ इज नथिंग बट 1 2 3 5. सो संडे से स्टार्ट किया था, 5 डेज आगे बढ़ जाओ. इट इज राइट ऑप्शन. सही है ना? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. इज इट फाइन? इफ वन डेज इज गिवन इट इज इजी. अगर 0 से स्टार्ट कराना तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट काउंट. चलो ये तो और इजी है. इफ इट इज मंडे टुडे आफ्टर 61 डेज क्या होगा? करेक्ट, आंसर इज -2. देखो सबसे पहले 61 डेज के अंदर कितने वीक्स हो गए? 8 का चलेगा 56. तो आंसर इज नथिंग बट 5. दैट मींस 5 ऑड डेज होता है, यानी कि मंडे को 5 शिफ्ट कर दो. आंसर इज मंडे से 5 शिफ्ट जाओ आगे, इट इज सैटरडे.
दूसरा तरीका जो उन्होंने सोचा, इफ इट इज 53, परफेक्ट आंसर क्या होता था, परफेक्ट वीक क्या हो सकता था 63, जिसमें से 2 कम है ना, तो 2 पीछे चले जाओ, मंडे से 2 पीछे, यानी कि इट इज सैटरडे। इज इट फाइन? दोनों तरीके, सिर्फ ऑड डेज समझना है हमें, बाकी चीजें इजी हो जाती है ना, उतना शिफ्ट लेना है, जितने ऑड डेज है उतना शिफ्ट ले लो। ट्राई दिस प्रॉब्लम, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, थोड़ा सोच के बताओ। 2004 लीप ईयर है ना, सोच के बताना। देखो फेब कवर ही नहीं हो रहा है ना, इफ यू ऑब्जर्व फेब कवर ही नहीं हो रहा है ना, सो इट इज ओनली 1 ऑड डे होता है, बिकॉज अगर मेरा दूसरा वाला डेट फेब के उस तरफ होता तो 29 फेब एक डे ऐड करवाता था, बिकॉज यहाँ पे फेब 29 आ ही नहीं रहा है, सो इट इज ओनली 1 ऑड डे एंड द आंसर इज, समझ रहा है? देखो ये एक ट्रिक पॉइंट होता है कि लीप ईयर है फिर भी एक ही ऑड डे हो रहा है, बिकॉज फेब को कवर ही नहीं करता है, वो 29 फेब को नहीं कवर कर रहा। ठीक है, चल सकते हैं आगे। लेट्स सी दिस, एक साल हुआ ना, एक साल बढ़ गया तो ट्यूसडे का हो जाएगा वेडनेसडे, एक ही दिन ना, नहीं इस बार 2 आएगा बिकॉज फेब भी दे रहा है, एक तो ईयर खत्म होने का, दूसरा फेब का भी दे रहा है। ठीक है, इज इट फाइन? समझा सर? सो द आंसर इज नेक्स्ट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट इज नथिंग बट क्लॉक प्रॉब्लम, है ना। कैलेंडर प्रॉब्लम के अंदर यही होता है कि ऑड डेज कितना है, कुछ नहीं दिया फाइंड आउट करो, कुछ दिया फाइंड आउट करो, या फिर इतने डेज की बात। ठीक है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट कि आपको ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ईयर लीप ईयर है कि नहीं, ये चीजें इजी हो जाएगी। ये क्लॉक के ऊपर बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है, लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज टाइप ऑफ अ क्वेश्चन वेयर द एंगल बिटवीन टू हैंड्स हैज बीन आस्क्ड। अगर सपोज मैं आपको पूछता हूँ 3:30 बजा है, तो व्हाट इज एन एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड, 3:30 बजे 90? श्योर? सबको घड़ी देखने आता है ना, सब लोग डिजिटल वॉच वाले हैं? थोड़ा सोच के बताओ। ठीक है, हम लोग सोचते हैं, मुझे सपोज कुछ नहीं पता, आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द क्लॉक, है ना, 3:30, 90 होना चाहिए ना, 90 होना चाहिए। अगर ऐसा क्लॉक है तो मुझे भी लाके दो ऐसा क्लॉक, मेरा क्लॉक तो ऐसा नहीं है ना। अगर इफ आई टेल यू इट इज 3:30, 3:30 का मतलब क्या होता है, मिनट हैंड कहां पे होगा? वेरी गुड, इट इज एट 6, चलो इतना तो पता है मिनट हैंड। आवर हैंड कहां पे होगा? नहीं, ऐसा मेरा नहीं होता, 3 और 4 के बीच में होता है। करेक्ट, सो इट इज बिटवीन 3 and 4, it is half the way over here, so it should be something less than 90, है ना। 90 कब होता, अगर वो 3 पे होता तो, and it is not possible। ऐसे तो नहीं, ठीक है। So to understand how to get it, it is really simple, we should know how they are moving in what time, ठीक है। सॉरी सर, चलेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि चलो आवर हैंड जो है वो किस तरीके से मूव करता है, बहुत धीरे धीरे, अगर पसंद नहीं है लेक्चर तो बहुत ज्यादा धीरे, ठीक है। ओके, सो इफ टू कवर दिस 360 डिग्री वो कितना टाइम लेता है? 12 आवर्स, राइट? ठीक है, सो इन 1 आवर इट विल कवर व्हाट? 12, it is nothing but 30 डिग्री, राइट। नाउ दैट मीन्स इट इज 60 मिनट्स के अंदर वो 30 डिग्री कवर करता है, राइट। एंड 30 डिग्री इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स, 1 से लेके 2 30 डिग्री होता है, 2 से लेके 3 30। नाउ इफ आई आस्क यू इन 1 मिनट वो कितना कवर करेगा? 30 divided by 60, that is nothing but half degree. So our hand cover half degree in 1 minute, correct? Now similar concept we try to answer for minute hand. To cover 360 degree उसको कितना टाइम लगता है? 1 hour, right? And that is same as 60 minutes. So in 1 minute it covers how much distance? This divided by 60, answer is something but 6 degree.
If we know this much, we can answer the question of angle between two. अगर suppose question था 3 hours and 30 minutes, यानी कि 3:30, तो मुझे क्या पता था कि मेरा मिनट हैंड पक्का 6 पे रहेगा, मेरा जो आवर हैंड है वो यहां और यहां इन दोनों के बीच में रहेगा, कहीं 3 और 4 के बीच में, करेक्ट? इट वुड बी समवेयर बिटवीन 3 and 4. लेकिन आवर हैंड 3 और 4 के बीच में आने के लिए उसने कितना मिनट्स लिया है? 30 मिनट्स. इन 30 मिनट्स उसने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा? 1 मिनट में कितना करता था आवर हैंड? हाफ. तो 30 मिनट्स में 15 डिग्री, यानी कि वो 3 के मार्क से 15 डिग्री नीचे है ना? इफ इट इज अ मार्क ऑफ 3, उससे वो 15 डिग्री नीचे होगा. सो ये डिग्री कितना हो जाएगा? बिकॉज टोटल 90 है ना, 90 में से ऊपर 15 है, तो नीचे कितना होना चाहिए? इट इज 75. The answer is 75 degree. But this is one of the way in which you have to think much. There is another way which gives the answer very quickly and more easily. But उससे पहले सिर्फ ये चीज आपको पता नहीं है. Please write this things कि क्या उसका डिग्री और मिनट में है, because questions है टेस्ट के अंदर इसके ऊपर. क्या सर? अरे बाबा, दोनों ही यूज करना पड़ेगा ना, because if a clock is moving, both the hands are moving. Right? We will see example देख के करेंगे हम, टेंशन मत लो. चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन आर ऑफ द टाइप वेयर वी हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू हैंड्स. टाइम क्या हुआ? 4:20, करेक्ट? यानी कि इट इज 4 hours and 20 minutes. देखो मिनट हैंड जो है ना, वो डिपेंड करता है कि कितना मिनट्स हुआ है, बिकॉज एवरी आवर इट इज एट द मार्क ऑफ 12, उसका पूरा सर्कल खत्म हो जाता है. सो मिनट हैंड कितना कवर कर रहा है, टोटली डिपेंड्स कि कितना मिनट्स हो चुका है ना. तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मिनट हैंड जो है वो कहां पर होगा आफ्टर 20 मिनट्स. इन दिस 20 मिनट्स उससे कितना एंगल कवर किया रहेगा? 1 मिनट में कितना करता है वो? 6. So it is 20 into 6, that is same as 120 degree. 120 degree from where? From the mark of 12. Correct? So minute hand ने cover किया है 120 degree from mark of 12. Correct? Now अगर हम लोग आवर हैंड के बारे में बात करेंगे, तो आवर हैंड दोनों पे डिपेंड करता है, कितने आवर्स हुए एंड कितने मिनट्स हुए. So in this 4 hour and 20 minutes, हर एक आवर में कितना वो कवर करता है? 30. सो इट इज 30 into 4 सबसे पहला, करेक्ट, प्लस 20 मिनट्स में एवरी मिनट इज हाफ. सो दैट इज सेम एज व्हाट? 120 plus 10, that is nothing but 130 degree from mark of 12. So answer is nothing but this way is much easier, है ना. जो उसके पहले मैंने बताया उसमें क्या था, यू नीड टू थिंक कि ये कहां पे, ये कहां पे, ये इतना नीचे आया, सबट्रैक्ट करना. दैट इज अ वे ऑफ थिंकिंग. यहाँ पे क्या होता है ना, हम दोनों के बारे में सोचते हैं कि मार्क ऑफ 12 से कितना कितना उन्होंने एंगल ट्रैवल किया. बिटवीन एंगल इज नथिंग बट द डिफरेंस, है ना. सर जाग जाएंगे थोड़ा. कहां पे डाउट है, चलो बताइए ना. 20 मिनट्स आए. सो एवरी आवर उसने कितना कवर किया रहेगा? एवरी आवर 30 डिग्री उसने कवर किया. सो 4 into 30 किया. फिर उसके बाद और 20 मिनट्स था, इसलिए 20 एवरी मिनट्स कितना था? हाफ. सो 20 into हाफ किया. लेकिन दोनों का एडिशन होगा ना, एंड, है ना, उस हिसाब से सोचा. इफ यू वांट यू कैन डू द सेम थिंग इन मिनट हैंड एज वेल, बट उसका फायदा क्यों नहीं होगा? अगर मिनट हैंड के अंदर भी अगर सपोज मैंने 4 hour 20 minutes लिखा होता है, every 4 hour it has a rotation of 360 degree. So it is 360, 360, 360, 360 और उसके बाद 120 degree. So ultimately it is same as 120 degree only, है ना.
ओके, इज इट फाइन? थोड़ा सा चले। इसमें और कुछ क्वेश्चन है, और एक दो क्वेश्चन और उसके बाद टेस्ट है। चलिए, ट्राई दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज एन एंगल बिटवीन द हैंड्स इफ द टाइम इज 15 past 5? उसका मतलब कितना बजा अभी? 5:15 हुआ है। 5:15 यानी कि आपको 15 मिनट्स में मिनट हैंड ने कितना कवर किया रहेगा? वेरी गुड, आंसर इज 90। सो 90 डिग्री बाई मिनट हैंड। अब आवर हैंड ने कितना कवर किया रहेगा? 5 आवर्स, यानी कि 5 into 30, it is 120, correct, plus 15 into half, that is 7.5, it is 127.5 minus 90 degree, answer is nothing but 37 point। आंसर है क्या? कहाँ पे अटके? तो फिर कहाँ गलत गया? नहीं सर, let us just try to write। okay, मिनट हैंड के बारे में सोचता है। it is मिनट हैंड कितना? 15 minutes will give me 15 into 6, that is same as 90 degree। hour hand जो है that is nothing but 5 hour 15 minutes, so it is nothing but 5 into 30। अरे यार ये 150 होता था ना, हम लोग ने उसको क्या लिया? 120 ले लिया, ठीक है। so plus 15 into half, yes, answer is 67, हाँ, because 90 है, correct। so it is nothing but half, ये हो जाएगा 150 plus 7.5, that is nothing but 157.5, and the difference is of 67.5, that is nothing but this। is it fine? okay. one more problem of the same type and then we'll go for the test। ठीक है। नहीं बस देखो, क्लॉक के अंदर ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। दूसरा होता है कि डिफेक्टिव क्लॉक प्रॉब्लम। डिफेक्टिव यानी कि क्लॉक जो है ना वो मिनट हैंड जो है ना वो थोड़ा स्लो चल रहा है। इन दैट सिचुएशन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस एंड ऑल दोस कांसेप्ट वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दैट इज डन। ओके, विल जस्ट स्टार्ट द टेस्ट। टेस्ट के अंदर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और है सिमिलर।